I've always kind of looked forward to such evenings where all of us friends meet, especially the working colleagues, because otherwise we're all busy in our own world. So I'm looking forward to meet all my friends, all my ex-co-stars, and just looking forward to enjoy the evening. किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलने वाला है? यंगेस्ट स्टार ऑफ द ईयर में अवार्ड मिलने वाला है. किस तरीके से देखती हैं आप इस It's a very grateful thing that I'm for, because it always feels very good when your work is appreciated and people look up to you. So it's a great feeling always. Okay, Ashna, besides that, upcoming projects वगैरह के बारे में share करना चाहिए. I have something coming up on the web. I've currently taken a break from TV and music albums because I kind of have my college started now and I want to prepare myself a bit before I come back as an adult, because till now it was all as a child actor or as a teenager. So just doing that. Is this the only reason why you are taking a break from television or a web series, or is there any particular other reason why you are taking a No break? particular other reason. I just need to prepare myself, I feel, physically, mentally, and also kind of take a little break, because I've been working continuously since 13 years, since I was a child, since I was 5 years old. So just for that, just preparing myself and doing short-term projects. But then your fans really love you watching in albums, right? Then what kind of response are you getting from your fans, because you have taken a break for a time? So what kind of response are you receiving? People are waiting for me to come back, but I would just want to say that the wait is going to be worth it, and whatever I'll come up with, it'll be very thoughtful, because I'm doing very selective projects now, and whenever I make a proper comeback, I'll definitely let you guys You know. said that you are going to come up with a web series. Can you tell us something about it? So there's one short film that's going on and a web series. So that's what's happening. The web series is a very interesting thing, Pari Ho Main, which is already, the poster is out, and the short film will also be released. So thank ये बहुत स्पेशल है. दिस इज़ कोरोना योद्धा अवार्ड. मुझे लगता है कि कोविड का जो फेज़ सेकेंड वेव आई थी, उसमें हर किसी ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की. मैंने मेरी कोशिश की, और इस चीज़ को लोगों ने अगर कोई भी सराहता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो जहाँ भी हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन में लोगों की मदद करें. थैंक यू. यहाँ पे लेना है. अच्छा, बाप रे. हेलो. बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत टाइम बाद एक अवार्ड फंक्शन पे आया हूँ. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू. किस कैटेगरी में आज आपको अवार्ड? इस कैटेगरी में मिला. आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट होस्ट. Yes, yes, we are doing bikes. यहाँ पर देखिए ना लास्ट पर मैम लोग रितिमा जी दिव्या जी यहाँ पर देखिए मैम इधर भी देखिए Hi. ओके, सबसे पहले दिव्या, कांग्रेचुलेशन. Thank you so much. ओके, इसी के साथ ये क्या एक्सपेक्ट करिए आज शाम? आज की शाम पता नहीं. आई जस्ट होप कि जो भी मेरी अचीवमेंट्स है, अभी कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मजा आएगा. ओके, इसी के साथ में बिग बॉस के बाद में बिग बॉस जीत गए हैं. काफी किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह के प्यार मिल रहा है लोगों को? द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग. जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है. एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज. बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने. सो आई एम वेरी हैप्पी. एंड जो मुझे मैसेज पहुँचाना था मेरी जर्नी के थ्रू, मैंने पहुँचा दिया. दिव्या, आप घर से बाहर निकली हैं, लेकिन अब बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है.
और आपके फैंस ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि आप बिग बॉस 15 में भी नजर आ जाए, कितना फैंस का मान रखने वाली हैं आप, और क्या घर के अंदर नजर आने वाली है? देखो मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है एंड आई वन दैट शो। हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट इट। Okay, besides that, दिव्या, also we would like to know, अब बिग बॉस खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में, उसके बारे में ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीजन 2 इज़ इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग गो नाइस, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज़ सो क्रेजी, तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की है, सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। यू सेड कि आपने बिग बॉस के अंदर का जो फील था वो ले लिया है, जी लिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कहीं कुछ सीनियर बनकर या कुछ इस तरीके से एक अपीयरेंस ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा, इवन आई एम गोना एंजॉय इट, बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। दिव्या, आपके साथ काफी पार्शियलिटी हुई बिग बॉस के अंदर, करण जौहर ऑल्सो एंड शमिता शेट्टी को इतने अंग्रेजी बोला जाता था, उसको कोई रोका नहीं गया, क्या आपको लगता है कलर्स चैनल पार्शियलिटी करता है, बूटी का पार्शियलिटी प्लेटफॉर्म? I really don't think so. जो भी होता है it was just part of the show and मेरे लिए वहाँ पे genuinely मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था। I know and मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ मुझ पर था एंड के तरफ से ऐसा लग रहा था कि आउटसाइडर को परेशान किया जा रहा है वहाँ पर। नहीं, इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है, बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ पे कैसे निकलूँ, आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है, मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ। उसमें भी आपका पक्ष रखने को नहीं दिया जाए, उस पर आप कुछ कहना? नहीं, आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो, तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई एंटायर जर्नी। ऑनेस्टली अभी हो चुका है जर्नी, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई, ट्रॉफी लेके, और क्या चाहिए उसको। OTT से काफी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो बिग बॉस 15 में नजर आने वाले हैं, किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक निशांत, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत, बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है, ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2 और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी, आई नो दैट, तो उसका गेम बहुत अच्छा था एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर। आपने एक ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर, हाँ, आपने बोला कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है, तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर, ही इज गोइंग टू किल इट मे बी। ओके दिव्या जी के साथ में जनरी पूरी जर्नी की अगर बात करें तो कितना डिफिकल्ट रही और कितनी चैलेंजिंग रही, जिस तरीके से हमने पहले वीक में देखा लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, राइट आप उभर के जो आई हैं, उसके ऊपर आपका क्या? दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ, वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर, तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी अग्रेसिव, बट दैट इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट। अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ, तो आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच वाज हैपनिंग देयर, बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस। जी कुछ कहना चाहिए अपने? जी बिल्कुल, कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है। द स्टोरी, एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके, एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ, and that's how I've come out on Cartel, and I'm very happy. शो की बात की जाए मनी हाइस्ट ज़्यादा ऊपर फेमस हो रही है कार्टेल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है। Indians are going to support, I'm sure, and there were 136 talented actors. There was no reason कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम
चले. It is giving justice to everything. एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में, आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट एंड दिस इज आई गेस एकता कपूर्स favorite project I could say because she's put in a lot. I think I loved all of them because सबके characters की ही अपनी अलग एक story थी और उन्होंने अपने character के हिसाब से जो twist and turns लाए हैं game में. It was I mean in the show it was amazing and मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो I think I really like the old man look. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वॉज वेरी नाइस. ओके दिव्या, लास्ट वीक घर के अंदर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कंटेस्टेंट के साथ में. सिंस द शो इज ओवर, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है क्या? हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल? या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीबडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बस 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 अरे फोटो बचा रे मैम लेफ्ट थैंक यू. मेरा पूरा वॉच इधर ही निकल जाएगा. थैंक यू. अरे अभी वन भी देने. एक सवाल ये पूछा ना Okay, so it's iconic gold award. What are you expecting? Actually, we're really excited and we are expecting full energy, enthusiasm and positivity. Okay, besides that, are you nominated? For what are you nominated? We are nominated for the category, exactly the entertainment category. So yeah, it's the twin comic. Yeah. Thank you so much. wait here. That's it. Sorry. Hi, how are you? Basically this all-rounder section that I have been nominated and I'm really excited for that because it's important for me. I mean, all-rounder thing, you know. और फैंस काफ़ी बेताब हैं ये जानने के लिए कब रिलीज होगा गाना जो तेरा होएगा जो आगे I guess mid-October because that's what I'm planning for. And yeah, let's hope for the best because इसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा excited हैं. और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की अवार्ड आइकॉनिक अवार्ड सेटिंग बात करें कितना स्पेशल होता है ये अवार्ड. Iconic award is, it's prestigious when it comes to iconic awards. Like most of the people know about it. You can see most of the people is getting invited to it. So I'm honored that I got invited, and yes, let's hope for the best. फैंस को क्या कहना चाहेंगे? I love you, Shakians. I love you, Shakians. That's what I can say. Thank you. Thank you so much. पब्लिक अपीयरेंस करते तो आपके साथ करण वीर हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं और कोई हमारा प्रेजेंट भी वो नहीं आ रहा Yeah. तो क्या कहना चाहिए अभी भी फैंस का इतना ज़्यादा प्यार मिलता है आपकी जोड़ी को तो ऑफर जाने I'm glad कि इतना प्यार मिला है हमें and I'm proud कि this जोड़ी Shakhi is a hit and I hope to surprise all the Shakians along with Karan Veer by appearing together. Yeah, let's hope for the best. Thank you. बस एक मिनट अच्छा बोला मैंने चला सही है
ऐसे क्या नहीं मैं निकल रहा हूँ। Okay, so it's iconic food. What are you expecting tonight? किस चीज़ में nominated है इसके बारे में बता सकते हैं? सी अवार्ड फंक्शन में जनरली तो मैं अच्छा बुफे भी एक्सपेक्ट करता हूँ वैसे अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार यू नो आई होप देयर इज यू नो ऑल द नॉमिनीज दे ऑल वेरी वेरी डिजर्विंग अब मुझे ये नहीं पता कि क्या देने वाले हैं सो आई विल गो एंड फाइंड आउट और करण जी जो गाना रिलीज होने वाला है काफ़ी लंबा इंतजार हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छे पीरियड पे निकालना चाहते हैं हम लोग तो एक शुभ मुहूर्त से निकालना चाहते हैं एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट है उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है तो वो सारी चीज़ें आएंगी अभी टुमारो एक्सपेक्टेशन भी वो थी कि आपके बर्थडे के दिन रिलीज होगा जी जी मगर वो नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़े लालची हो गए अभी किसी और के बर्थडे पे शायद आपके बर्थडे पे निकालेंगे इसका बर्थडे है हैप्पी बर्थडे नहीं है चलो केक फिर भी खिला दो फैंस को क्या करना चाहेंगे जो आपको प्यार देगा? फैन को क्या कहना चाहूँगा कौन से फैन को आपको अच्छा फैंस को क्या कहना चाहूँगा उनको आई लव यू कहता हूँ थैंक यू कहता हूँ और आपकी वजह से मैं इधर हूँ सो आई एम टेकिंग दिस फॉर द टीम दैट इज़ यू गाइज थैंक यू सो मच Thank you. ये काम करें एयरपोर्ट दे दो एयरपोर्ट दे अरे वाह चलनी चाहिए हेलो So it's iconic gold award, right? What are you expecting? Are you nominated? You can let us know. एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रहती हैं और हर नॉमिनेशन वाला यही सोचता है कि मुझे अवार्ड मिले सो फिंगर्स क्रॉस्ड लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट In which category are you nominated? आई एम आई थिंक इन versatile actor so yeah All right. So you know, till now you have worked in so many web series and web platform. It has been a great success. They have received a very good response. So any upcoming project, if you would like to share with us? Yeah, right now I started shooting for Ashram, so that's going on. Apart from that, my 2 films are coming. One is I have finished shooting and now they are about to release a name. One is with the T series. It's production number 109 with Madhavan and Kushali Kumar. So it's a it's a thriller film. Amazing. We had a great time shooting, and the another one is with the Z Studio. So they are about to release. So you're done with the Yeah. So I'm playing lead in both of them. So just waiting for that. Thank you so much. Thank you guys. दर्शन इसी के साथ में फैमिली मैन की अगर बात करें तो क्या स्टेटस है उसका एक्चुअली वो राइटिंग स्टेज पर है अभी हम पहले शूट करने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया और अभी अगर हम नेक्स्ट शूट स्टार्ट करेंगे तो वो तकरीबन 2 साल के बाद आएगा ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ही आने वाला है तो उस वक्त ऑडियंस की किस तरह की रुचि रहेगी किस तरह की स्टोरी में वो पसंद करेगी तो राज अंडिके सर दोबारा रीराइट कर रहे हैं उसमें तो जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होगी हम शायद स्टार्ट शूट करेंगे थैंक यू सो मच वे लोग या जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो लोग मिलते हैं जिनका काम आप देख रहे हैं वो लोग मिलते हैं तो आई थिंक लाइव लोगों से मिलना आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पीपल आई वर्क विद पीपल हुज वर्क आई एडमायर एंड ऑफ कोर्स एंड देन कलरफुल इवनिंग विद मुझे पता नहीं किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है हम किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है हम
मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं काम आई थिंक यार कल ही परसों ही फिल्म हैज़ बीन अनाउंस्ड. आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म सरदार उधम, and Vicky Kaushal is playing the role of Udham Singh, and I am playing, it's a special appearance, but I'm playing a very special character of the legendary Bhagat Singh. So that film is releasing in October. अभी कल परसों अनाउंस हुई है, so I can talk about it, and it's coming out on Amazon. All right. Good night, guys. सबसे पहले तो what do you expect tonight? हाँ जी. Expect कर रही हैं आज रात को? Well, I'm nominated for the best. Well, I'm nominated for the best teen actress, and I'm nervous plus excited. Let's hope for the best, and I hope कि I win the trophy. Yes, I feel nervous and excited at the same time. नतांशी, सबकी शो का हिस्सा रही है आप, और सबकी का सीजन 2 आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? Well, मैं टीम को full best wishes देना चाहूँगी, and yes, I came to know about that, and I know many fans requested कि बानी कहाँ है, आपकी गजब गर्ल कहाँ है, but no, I'm not a part of this season, and yes, true wishes to the team, and I hope they rock. अच्छा, ड्रेस के बारे में क्या पूछना चाहेंगे about the look of the for the night? You're looking so pretty and beautiful. Thank you. This is a pink gown and like earrings and the hairstyle and everything. I love the look. It's a very princess type look. अच्छा, प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल क्या कुछ कर रही है नतांशी? Well, अभी के लिए मैं अपने 3 to 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स डिस्क्लोज कर सकती हूँ. वन इज़ मैदान, जिसमें मैं अजय सर की डॉटर का रोल प्ले कर रही हूँ. बाकी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती. बट या मेनी एक्साइटिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग. सो या स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. बाय. लोग मेरे सब एक यहाँ पर आ रहे थे. राइट में Carry this side. Thank you. Thank you. Bites. Rolling guys. Congratulations again. तरह से प्यार मिल रहा है. Again, you're receiving love and the award. क्या कुछ कहना चाहेंगे? It feels very great. I am very happy to be a part of Iconic Gold Awards this year 2021. और धरा को इतना सारा प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी मिलती है. Thank you. Thanks to all my fans who have given me so much love. और आज शाम के लिए कितनी excited है आप? Oh, I was very excited. I especially wore gold for the Iconic Gold Awards. अच्छा, ड्रेस के बारे में जिक्र किया तो उसके बारे में पूछना चाहेंगे
about the look? I'm wearing a gold sequenced gown. Yeah, I couldn't opt for anything else because it was iconic gold awards. I thought let's go for a golden gown. फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? पंजाब स्टोर धरा के फैंस. Thank you guys. Thank you. Thanks to every one of them who have been loving me, who have been supporting me, who have been watching our show, loving Dhara, loving Shiny. Thank you so much. Thank you guys. अरे ये आता बसला किती फोटो मारा रे एक मिनिट थैंक यू ओके रोहन सबसे पहले तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू राइट सॉरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आप मैं अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ तो लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट I've been nominated for something, so let's see. किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया कैटेगरी एक्चुअली जो मुझे बताया यूथ के रिलेटेड कुछ कैटेगरी है, यूथ आइकन कैटेगरी है, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स होप दैट आई गेट द अवार्ड. ओके अवार्ड की अगर बात की जाए तो मतलब क्या है अवार्ड आपके लिए? अवार्ड्स एक्चुअली काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए. हम इतनी मेहनत करते तो अगर अवार्ड मिलता तो बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मन करता है और लोगों को एंटरटेन करने का मन करता है. मैं तो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ. मैं तो जब मैं अपने 10th सीज़न में था उससे भी 5 सीज़न पहले से देख रहा था. मैं तो I'm a die hard fan. OTT थोड़ा सा मज़ेदार नहीं रहा इस बारी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस 15th सीज़न. और सलमान सर फिर से आ गए हैं, बहुत एक्साइटेड. किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं घर के अंदर इस सीजन में? एक्सपेक्ट एक्चुअली हम जिन लोगों को करते हैं कुछ और ही उल्टा ही होता है. लास्ट मोमेंट चेंजेस हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती है, बट मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी है और पुराने प्रतीक है इस बारी जो OTT से आ रहे हैं, तो वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स ऐसे सुनने में आया था. नाम आ रहा है मसीन और शिवांगी जोशी. हो सकता है. मुझे सुनने में आया था कि वो शो छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हैं वो. जी हाँ, मैं अभी शो से ही अभी शूट करके ही आ रहा हूँ. क्लास ऑफ 2020 का 2nd सीज़न आ रहा है. ऑल्ट बालाजी एकता मैम का शो है, विकास गुप्ता का शो है, तो शूट चल रहा है और आई थिंक 15-20 डेज़ में रिलीज़ भी हो जाएगा. तो या थैंक यू सो मच. को ना सुकून ही है यार किसी चीज में. सुरभि बनी है. तुम लोगों को चाहिए ना सब फोकट में सवाल चाहिए. अब तुम लोग ही पूछो, नहीं पूछना है. मत पूछ. सुरभि इधर. सुरभि इधर. मुझे लगता है ऑन योर लेफ्ट. पहले ना कोई और आपके लिए पूरा यहाँ पर देखिए सुरभि जी. अरे यार ये सुरभि थँक यू. पहिला फोटो ब्लर आला का तुझा? काय म्हणता? ब्लर फोटो मारो. नहीं मैम, वो मजाक कर रहा है मैम. स्टार भाई बस पुढे आले तर पीछे तो सबको मिलेगा. जुदी थोड़ा पीछे का जाओ. शार्मा थोड़ा पीछे हो जाए, सबको मिलेगा. शार्मा अरे शार्मा यू आर कमिंग इन अ फ्रेम. हाँ जी. एक मिनट के लिए आइए. अभी भी नहीं हुआ ना. हाँ ऐसे पीछे में सबको मेरे पास भी नहीं. यहाँ पर नहीं देगा. सुरभि मैम आई है, वो लोग वैसे ही करेंगे, रोज करेंगे, वैसे ही करेंगे. आ जाइए. वो रहते हैं इसकी दुकान है वहाँ. मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सॉन्ग के लिए. लॉट ऑफ लव. सर से भी बात हुई लास्ट टाइम
और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, क्या कहना चाहिए आप? बहुत अच्छा लग रहा है यार, ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने ऐसा कोई पहले गाना म्यूज़िक में मैंने कभी ट्राई नहीं किया एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम। सो इतना पहला वाला इतना पॉपुलर हो गया कि उसका एक सीक्वल भी आ गया एंड इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज मुझे पता नहीं था कि यार आजकल तो ये जो ट्रेंड है इट्स बिकम सच अ म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड द म्यूज़िक वीडियोस का जो ट्रेंड है इट्स जस्ट बूमिंग एंड इट्स अमेजिंग। जैसे कि आपने बताया कि पहला वाला इतना फेमस हो गया कि दूसरा करना पड़ा, दूसरा वाला इतना फेमस हो गया तो कि आप तीसरे की अब मुझे पता नहीं उनके पास कहानी है कि नहीं अब तीसरी, क्योंकि उन्होंने अभी भी ऐसे आधा ही छोड़ा है। सो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट देयर इज़ अनदर स्टोरी। ऐसा ना हो कि अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ या वो अवेलेबल नहीं हो तो हमारी प्लास्टिक सर्जरी होके आए। सो वी डोंट नो। आई मीन मैंने वेरी ऑनेस्टली थोड़े बहुत ग्लिम्सेस देखे हैं OTT के, बिकॉज मैं कलर्स में काम कर चुकी हूँ एंड कलर्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नेटवर्क। सो आई थिंक सच बोलो तो मुझे शमिता और राकेश बड़े क्यूट लगे हैं एंड आई थिंक आई वांट टू सी मोर ऑफ देम। बट सीजन 15 आ रहा है एंड अभी तक हमने देखा है कि आप फॉलो करती आई हैं बिग बॉस को, कितना माइंडसेट रखा है क्योंकि कलर्स का बेस रही हैं आप, तो कितना माइंडसेट प्रिपेयर्ड रखा है कि अगर आपको बिग बॉस के अंदर बुलाया जाए तो जाना? वेरी ऑनेस्टली यार मैंने हमेशा ये बोला नेवर से नेवर, कोई भी काम आता है उससे ना मत करो, बट आई डोंट थिंक इफ आई एम मेंटली रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस। मुझे लगता है जब वक्त आएगा मेरा मन भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। अभी मुझे दिखता नहीं है कहीं ऐसे मैं प्रिपेयर होती हूँ। लिसन आई नो दैट शमिता इज गोइंग, सो आई वांट टू वॉच मोर ऑफ हर एंड एवरीबडी यार, आई एम श्योर मजा आने वाला है। रंजन जी यार विद नागिन ना इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रीज़न वन क्योंकि एकता बालाजी सबका ड्रीम होता है उनके साथ काम करने का एंड वो फुलफिल हो चुका है मेरा। दैट्स बीइंग टिक्ड ऑन माई चेकलिस्ट। सो एंड इट वाज अ टफ शो, सो आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर इट। मतलब इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और क्या आने वाला है तरफ से अगर काम की अगर बात करें? मैं सुना है मुकेश जी भी गए हैं। पूछ रहे थे ना? नहीं, आई एम सो सॉरी बट आई विश एकता एंड बालाजी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। मैम आइए मैम, विजुअल होने देना, कब से लोग विजुअली तो कर रहे थे मैम। साइड से आ जाओ। Good. I'm moving in. Yes ma'am. Thank you. Newsstand. Newsstand. Yes. Congratulations. Thank you. हैदराबाद में अवार्ड से नवाजा गया है। No, I attended the awards. और क्या आप साउथ में भी अभी डेब्यू कर रही है, कोई फिल्म कर रही है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। मुझे खबर मिली है इसलिए वो बोल। मैं लास्ट तक कुछ नहीं बोलती। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। ओके, तो आज आपको नॉमिनेट किया गया है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? It's always, a privilege to be awarded or nominated in any awards because हमें encourage किया जाता है कि हम better करें. So it's always a pleasure. और आप बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमेशा से आप जब भी रेड कार्पेट पे आते हो हटके। हटके हो जाते हैं। कौन से डिजाइनर आपके? I'm wearing Sonakshi Raj today and yeah, she's always very different with her designs and that is why I look different. Okay, Erika, I just wanted to know, Shahneed की यहाँ पे क्यूट सी बेबी आई है। जी। What is your take on that? Have you met her or what? I call her Rasgulla because she's like a Rasgulla. Have you met her or something? No, I have seen her pictures, but I have not met her because we were too busy shooting and everything. But hopefully soon I will get to meet her.
मैम साउथ में तो आप अरे साउथ पे ही हटकर हम अभी टीवी की बातें करते हैं ना। लेकिन फिल्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप बता सके तो कौन सी फिल्म आप कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बता रही, कोशिश भी मत करो। हमें ही लगाना पड़ेगा। बीच में खबरें आ रही थी कुछ फिल्म को लेकर, कुछ बताना चाहेंगे? फैंस थोड़े निराश हो गए थे। कैसी खबरें? ऑफ एयर को लेकर खबरें आ रही थी कि टीआरपी। अगर ऑफ एयर होना था तो अब तक हो ही जाता ना, जैसे रूमर्स आते। Okay, besides that, Big Boss कितना फॉलो करती हैं और Big Boss का सीजन 15 I don't watch Big Boss. I'm so sorry. Thank you, thank you, thank you. आइए सर। मन खराब हो तो एक सीन उठा के दे। नमस्कार, पूछिए, किसी को कुछ पूछना? किस आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के? अच्छा, पहले शुरू ही किया किस, मतलब क्या, ये क्या है? अच्छा माहौल है तो अच्छी ही उम्मीदें हैं। अब अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या है। मेरी शुभकामना सबको, ये शाम मज़ेदार हो। किस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है? आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड। हाँ, मुझे नाम नहीं मालूम, इवेंट का नाम मालूम। ओके सर, इसी के साथ साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात हाँ, करें, हाँ। क्या आने वाला है सर अपनी तरफ से? यार 4 फिल्में हैं जो वेट कर रहा हूँ रिलीज़ की। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आधार, एक साउथ की फिल्म है, उसका नाम अभी फाइनल नहीं है, मतलब हिंदी में है, रीमेक है, एंड वन मोर फिल्म सिया। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और इस लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ नया नया अनुभव कराया हर किसी को, और मुझे लगता है हम सभी काफ़ी मजबूत होकर निकल के आए हैं। तो इस मजबूती के साथ अब और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे क्या है? आज आपको नॉमिनेट किया गया होगा, कुछ बताना चाहेंगे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड? आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे वो लोग नॉमिनेट किया, मुझे अवार्डीज बनाया। आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम मैं ये अवार्ड ले रहा हूँ। एंड चलो, अवार्ड क्या होता है कि एक हौसला होता है। आई थिंक ये मिलने के बाद एक लाइबिलिटीज और बढ़ जाता है। तो हर अवार्ड का वही मायने रखता है। आई थिंक दिस इज गुड फॉर, एंड डेफिनेटली आई एम ऑनर्ड। अवार्ड की अगर बात करें, आप सीनियर एक सिंगर हैं, मतलब टाइम से आप सबसे पहले अवार्ड की कोई याद, कोई मेमोरी कोई आप बताना चाहेंगे? तो पहले अवार्ड आपको आपकी लाइफ में मिला? देखो, पहला अवार्ड तो पहला फिल्म फेयर जब मिला था, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड। पहला फिल्म फेयर आपको मालूम होगा आशुदी से मिला था। एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और तब अवार्ड का कुछ मायने होता था। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सर 2 लाइनें अगर आप कोई... अरे यार, क्या नाम एक साथ देखिए। Congratulations.
थैंक यू गाइस। कैसा लग रहा है? How is it feeling? नए डैडी हैं, कैसा फील हो रहा है? And how is it going? Thank you guys. You carry on. नहीं, what will I say? You say ना. Excuse me. पूछिए इनसे पूछिए। अब आपसे दोनों से पूछो। सब नखरे क्यों? Hello. Hi. Okay, so it's iconic award, gold award. What are you expecting? सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, आर्टिस्ट के लिए तो बहुत स्पेशल होता है अवार्ड्स। मुझे लगता है कि सभी आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, तो आई थिंक जो थोड़ा सा जो उनको एक अवार्ड मिल जाता है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू हैव ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स। तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है, बिकॉज आई एम न्यू इन द इंडस्ट्री, मैं बिगनर हूँ यहाँ पे इस वक्त। तो काफ़ी सारे अच्छे आर्टिस्टों के बीच में आई एम पार्ट ऑफ देम, सो इट्स अ गुड फीलिंग। आपके अगर गाने की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, शायद वो हिना भी आए हैं, पार्ट 2 भी प्लान कर रहे हैं। Yeah, I think it's not part 2 actually. It's a new song. Hina और शाहिद को लेके it's मोहब्बत है. For the first time Mohit Suri is directing a music video as far as my knowledge. तो I think let's see, गाना बहुत अच्छा बना है actually, और let's see क्या रिस्पॉन्स कैसा होता है. So I'm hoping कि गाना बहुत बड़ा हो. Okay, कोई दो लाइन अगर आपके गाने की अगर Yeah, I'll sing थोड़ा प्यार आप सबके लिए. तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। थैंक यू। ओके सोनाली, सबसे पहले तो आज के अवार्ड की अगर बात करें तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक फन नाइट, बिकॉज ऑनेस्टली ये इवेंट्स और ये नाइट्स इतने कम हो गए हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ एन अवार्ड फंक्शन और इवेंट जो इंडस्ट्री को रिलेटेड हो, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड पॉजिटिव वाइब्स ओनली, एंड या आई एम एक्सपेक्टिंग टू विन एन अवार्ड। ओके, आप परफॉर्म कर रही हैं, नॉमिनेटेड हैं, क्या है, किस तरह की? I am nominated. I'm yet to find out what award I'm getting. But yeah, I'm looking forward to tonight. Okay, talking about your attire, what would you like to say? काफी ज़्यादा different है, काफी अलग ही colors है, क्या कहेंगे किस तरह से आपने? और मेरा हेयर डू डिफरेंट नहीं है. For me, I'm so yeah, I know. So I am someone जो मैं अपने हेयर के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती. I usually keep it open. But since the outfit was so edgy and it's so pretty and pink and girly, but at the same time it's very edgy as well. उसका structure बहुत different है. And I was feeling very powerful. So I decided to do this look, and I feel very comfortable in it. Like I can literally run in this outfit, and even though I'm wearing heels. So I like it. It's the outfit is by Ekta Stories. Alright, so besides that, any upcoming project if you would like to share? My Punjabi song released yesterday called Churi. It's already crossed 5 million plus views. Khan Benny song. It's really nice. If you guys haven't seen it, please go and see it. My last song Dolna did well. And yes, I leave for my next project next month.
I'm going to the UK to shoot it, and we will be announcing it soon. And Bundi Raita is there, so when I come back, I start shooting for that as well. And I've finished my 2 debut OTT projects, one with Vikram Bhatt and one with Ashwini Chaudhary for Woot. So I'm looking forward. This has been a good year. Thank you so much. No, yeah, let him ask. He wanted to ask. You already said. I said. 10 million. Congratulations. Yes. Thank you. जो सबसे घटिया चीज उसको बोल रहा है सर समझ रहे हो ना उसकी चॉइस संजय सर लेफ्ट में बस यस सामने Thank you. Sanjay, on the way up. Hi. Hi. किशन आज आपको नॉमिनेट किया गया हुआ आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड किस कैटेगरी में क्या थोड़ा टू ब्रेक फैशन कन्वेंशन, जैसे हम इंडिया में इतने बॉक्सेस बना के रखते हैं हर चीज़ के लिए, एक्टर्स के लिए, और स्पेशली जब आप हिंदी फिल्म एक्टर हैं तो आपके लिए बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं. तो होपफुली टू ब्रेक इट, आई होप आई विन इट, एंड इट्स बेसिकली द कैटेगरी इज कॉल्ड शैटरिंग फैशन कन्वेंशन. Well, talking about fashion, अभी पिछली बार आपने नेल आर्ट करके जो है फैशन को एक नया ट्रेंड दिया है बीइंग अ मेल. अब इस बार इसके आगे और कितना ऊंचा या इसके आगे मैं अगली बार मोर पंख लगा के आऊँगा. No, I'm kidding. You know, nail paint, I don't think it's something that I've introduced. In India, maybe yes, on a red carpet, yes. But अगर globally आप देखें, rock stars and all these really cool actors from the 70s, 60s, they've been wearing it. And I don't think अभी हिंदी सिनेमा को या बॉलीवुड को या बॉम्बे को LA से कम मानना चाहिए या ग्लोबल सिनेमा से कम मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कोई अगर अमेरिकन करे तो बहुत कूल है, अगर कोई राउंड मुंडा करे, ब्राउन मुंडे गाना रेफरेंस, तो ये क्या कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. आई थिंक वी शुड लेट पीपल बी यूनिक, बी देमसेल्व्स. So that was my unique take at it, and it got a lot of love, so I'm happy. Yes, besides that, कुछ वक्त पहले आपने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की ख्वाहिश जताई थी. Is there any talks about that और बातचीत चालू है? Actually, because मैं आशुतोष गोवारिकर जी के साथ 2 बार काम कर चुका हूँ. एवरेस्ट में उन्होंने मेरे को एज अ प्रोटैगनिस्ट लॉन्च किया था, फिर पानीपत मैंने करी थी एज शमशेर बहादुर. तो अभी अगर आप पीरियड ड्रामा को अगर मुझे आगे लेके जाना है मेरे फिल्मोग्राफी में, तो आई थिंक नाउ मिस्टर बंसाली इज समबडी आई एम लुकिंग टू वर्क विद, लुकिंग फॉरवर्ड. Talks, I mean, to be honest, that was my wish. मेरी दिल से ये इच्छा है, ये मनोकामना है that I work with him, because I think the way he presents his actors, I'm not too sure if anybody else other than Ashu sir does. So yeah, that's what it was about. Okay. इसी के साथ में अगर आपके लुक की अगर बात करें, कहीं ना कहीं हमें 90s के शाहरुख की याद आ रही है, राम जाने राम जाने. अच्छा, नहीं यार ऐसा है नहीं, मैंने राम जाने देखी भी नहीं है एक्चुअली, बट मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ. आई एम श्योर सब हैं. He's too legendary, but I'm not trying to ape Shahrukh sir. I'll never be him. He's too big a legend. I mean, this मैं अपनी मम्मी का हार पहन के आ गया हूँ. Basically, that's the idea. I'm just wearing something that was in my mom's wardrobe, and this jacket is by Karthik, the designer. So yeah, that's my look. Thank you guys. Pictures and bites. जानना चाहूंगी खतरों का खिलाड़ी की ही बात करूंगी पहले तो आपसे. फिनाले वीक है, क्या कहेंगे किस तरह से जो एक बस बनी हुई है विनर को लेकर, आपकी क्या राय है? राय तो मैं क्या दूं, लेकिन आई थिंक द मोस्ट डिजर्विंग वन शुड विन, सो दैट इज ऑल आई कैन से. बस है, कहीं ना कहीं रूमर्स है अर्जुन हैज won the show.
क्या कहेंगे कि क्या ये सही है या क्या गलत है, क्योंकि फिनाले की बात तो काफी ज्यादा की जा रही है, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप शो देखिए, आपको पता चल जाएगा। सौरभ का जो खबर बात की जाए अर्जुन बिजलानी ही जीते हैं, हमें खबर है, तो क्या कहना चाहेगा अर्जुन के लिए, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट रिएक्शन आपका? आई विल से द सेम थिंग कि जो मोस्ट डिजर्विंग है वो जीते, और कौन जीतेगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे। ओके, बिसाइड्स दैट सौरभ, यू नो हमने अक्सर देखा है कि जब कलर्स का कोई एक शो होता है तो उसके बाद फॉरेन दूसरे शो में भी नजर आते हैं, तो आपका कोई प्लान है कि कलर्स के साथ कोई और कोलैबोरेशन? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। Guys, let's stick to the award question. आज आपको नॉमिनेट अमेजिंग, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? क्या आपने उसके मन से क्या सीखा? क्योंकि ये कैरेक्टर का बहुत सा फिर से वो कैरेक्टर प्ले आई कैन से दैट आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वैसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए, और आज तक लोगों का प्यार उस कैरेक्टर की वजह से मुझे मिलता है। सो आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट। Let's talk about the award, guys. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, थोड़ा सा आई थिंक अवार्ड्स जो हैं वो एक तरह का हमें encouragement देते हैं टू डू आवर वर्क बेटर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दिस इवेंट। इस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया वो कौन सी कैटेगरी? थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके अटायर के बारे में बताइए, कौन से डिजाइनर से आपने ये अटायर किया? This is by Nidhi. She did it at the last moment. I really thank her for that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. सामने सिद्धार्थ सर, अनुज के बारे में देखिए सिद्धार्थ सर, पोस्टर अच्छा है आपका, यहाँ से मुझे सिद्धार्थ यहाँ देखना, अभी फोटो हो गए उनके, हम लोग वीडियो के लिए ये लोग फोटो बराबर हमारे मम्मी जी, मम्मी 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 सर, हाँ सर, मैम लोग भाई इधर, भाई इधर, भाई भाई मम्मी बाइक्स। सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्ट करें आप? Well, I think after all this pandemic, I think पहला अवार्ड शो जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, so definitely I'm very happy and excited, and I don't know कि क्या होने वाला है। Well, जब मैं अंदर जाऊँगा, जब मुझे कुछ पता चलेगा, then only I can let you guys know. ओके, सिद्धार्थ, अगर आपकी बात करूँ तो प्रतियोगी के साथ में वो आपकी ज़्यादा वायरल हो रही है, उस बारे में बताएंगे कि क्या आपका उनके साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इस वजह से वायरल हो रही है? जी हाँ, क्योंकि ओवरनाइट बहुत ज़्यादा सेंसेशन बन गया है इस फिल्म का, तो उसके बारे में। जी हाँ, प्रकृति एंड सुकृति दोनों का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है मजनू, जो आ रहा है 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को। इसमें मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, और हम और सुकृति प्रकृति है, तो ये चारों लोग आ रहे हैं मजनू में, एंड बहुत अच्छे रैपर हैं इस गाने में, मेलोडी। तो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है सुकृति प्रकृति एंड मेलोडी, और साथ में हम दोनों भाई हैं इसमें, तो बहुत बड़ा म्यूज़िक वीडियो है ये। सो आई एम रियली होप कि अच्छा जाए। बट जिस तरह से आप दोनों उस पिक्चर में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या ये एक रोमांटिक सॉन्ग या कुछ ऐसा होने वाला है? कह सकते हैं रोमांटिक भी है, और थोड़ा स्कूल कॉलेज टाइप सॉन्ग है ये, और बहुत ही अपबीट और पार्टी सॉन्ग है। थैंक यू सो मच। Okay, so firstly, it's iconic gold award. What are you expecting tonight? कितनी excitement है award के लिए, क्या कहना चाहिए?
अवार्ड्स के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होता ही है एंड आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड और अगर ऐसा होता है सो आई विल बी वेरी हैप्पी. Okay, besides that, you know, there have been lot of buzz about you going to a Big Boss house. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? I am not going to Big Boss. You're not going? No. तो फिर, but there has been a lot of buzz कि आप जाने वाली हैं Big Boss house के अंदर. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I am not going to Big Boss. आपके अलावा मौसम की भी बात की जा रही है. आप और मौसम दोनों ही साथ में जा सकते हैं. क्या कहेंगे? I know that कि आप नहीं जा रही तो मौसम जा सकते हैं. हम दोनों ही बिग बॉस नहीं जा रहे हैं. हम दोनों ही नहीं जा रहे हैं. आई एम सो सॉरी आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट. ओके शिवांगी यार इसके साथ अगर बात करें अवार्ड ओके शिवांगी इसके साथ अगर अवार्ड की अगर बात करें आज तो अवार्ड आपको आप नॉमिनेटेड हैं अगर इसके अलावा कोई ऐसी याद कोई अवार्ड की जो आप शेयर करना चाहते हैं? कोई अवार्ड की याद? कोई पहले अवार्ड की कोई मेमोरीज कोई याद जो आपको क्योंकि पहला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए. हाँ पहले अवार्ड जो मुझे मिला था वो ये रिश्ता के लिए था. आई थिंक इट वाज फॉर बेस्ट पत्नी. स्टार परिवार अवार्ड था एंड पहले तक आई वाज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड और जब अवार्ड मिला तो मैं इतनी मुझे ऐसा लगने लगे ये अपना ही ये सब अपना ही है. आई डोंट नो आई जस्ट फेल्ट लाइक होम. मैं घर पे और घर पे मुझे कोई अवार्ड दे रहा है. स्टार इज़ अ फैमिली एंड आई नो इट वाज वेरी नाइस. जस्ट पता नहीं फर्स्ट अवार्ड का मुझे ऐसा कुछ वो रहा नहीं क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरे घर से ही कुछ बहुत स्पेशल मिला है एंड आई डोंट नो आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी बट या आई थिंक सेकेंड अवार्ड में जब मुझे जो सेकेंड अवार्ड मिला था आई रिमेंबर मैं उसमें स्टेज पे जाके जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया था आई वाज शिवरिंग. इनफैक्ट व्हाइल होल्डिंग द ट्रॉफी ऑल्सो माई हैंड वाज लाइक शिवरिंग. द ट्रॉफी वाज हैवी बट या. But Shivangi already said you don't want to talk about the exit, but अगर ये रिश्ता के बारे में बात की जाए तो you have personally won lots and lots of awards for ये रिश्ता क्या कहलाता है. And suddenly coming up with this buzz and or whatever it is, what do you want to say regarding that? ये रिश्ता इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड हमेशा मेरे लिए ये रिश्ता इतना ही स्पेशल रहेगा जितना आज. थैंक यू. शिवांगी अगर आज की अगर बात करें तो मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि दूसरे अवार्ड में यू आर शिवरिंग आज की क्या तैयारी करी हुई है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ. आई एम गोना मीट माय फ्रेंड्स. काफ़ी लोग आने वाले हैं. बहुत टाइम के बाद मैं उन लोगों से मिलने वाली हूँ सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. Hi. Hi, how are you? Good. Yes. Okay, सबसे पहले तो congratulations award के लिए. अरे मेरा अवार्ड है कहाँ? मेरा अवार्ड तो दो. One second. फोटो कोई और दिखा. Iconic participants of the year for reality show. Yay! I got it. Thank you. हाँ जी. किस तरीके से देखती हैं आप इस अवार्ड को? मुझे इस अवार्ड से और मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है जहां पर मैं अपने दर्शकों को एंटरटेन कर सकूं. So since it's iconic reality show के लिए मिला है तो कौन से reality show को अभी एज अ टारगेट देखती हैं और कौन से reality show का करना चाहती हैं? अब नेक्स्ट डेफिनेटली मैं कोई डांस रियलिटी शो करना चाहती हूँ. That is on my bucket list. So hoping for something interesting coming my way. Okay, since you said कि dance reality show की हिस्सा बनना चाहती हैं, you have been an anchor for a dance reality show. There are many other reality shows जो celebrities को लेकर आते हैं. Right. So, if we talk about Nach Baliye, it's with. हाय अब बलिए तो नहीं है मेरे पास. क्या करूँ मैं? हाय, how are you? Thank you. Go they're waiting. So yes, हाँ बलिए तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बट नॉनदलेस हम नाचेंगे जब मौका मिलेगा तभी. व्हाई नॉट. ओके जैसे कि रियलिटी शो की आपने बात करी है बिग बॉस की भी आप हिस्सा रही हैं 15 भी आ रहे हैं उसमें आप नजर आ सकती हैं.
नेवर से नेवर। बिग बॉस जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ मेरे हर इंटरव्यू में, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज़। और हाल ही में मैं बीबी OTT में भी थी और मेरी जर्नी बड़ी शॉर्ट थी बट इवेंटफुल थी। एंड द आइडिया वॉज टू लुक डिग्निफाइड, कम आउट डिग्निफाइड। एंड बिग बॉस 15 की बात करें तो मैं भी एज अ व्यूअर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट लेट्स सी if I go in or I don't. As a viewer बहुत ज़्यादा excited हैं, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेस्टेंट भी इस सीजन नजर आने वाले हैं, किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? एक्चुअली अभी तक तो सिर्फ स्पेकुलेशंस चल रही है, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने करण कुंद्रा का नाम सुना है। करण मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छा याद दिलाया। यहाँ से जाने के बाद मैंने फ़ोन करके पूछूंगी कि जा रहे हैं कि नहीं, बट अगर करण है तो मैं उन्हें ज़रूर देखूंगी। ऊपर से पुराने घर में से निशांत और शमिता तो है ही वहाँ पे, सो यस ऑफ कोर्स। हाँ, प्रतीक भी है ऑफ कोर्स। प्रतीक और सलमान का जब होगा मिलन तब आएगा बड़ा ही मज़ा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। देखा जाए तो ये जंगल थीम होने वाला है, संकट और मंगल। तो कौन करेगा जंगल में मंगल और किसके लिए होगा संकट, जो OTT से जा रहा है? संकट तो होगा प्रतीक के लिए फॉर श्योर, आई होप ना हो, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके। बट बाकी तो मंगल निशांत करेगा, मंगल उससे आता है गेम खेलना। ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Are we done? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा मैंने कहा कि ये शायद एक मोटिवेशन है सबके लिए। इतने समय से सब घर पे हैं तो अब वापस से काम शुरू करने के लिए यू नीड समथिंग, सम अप्रिसिएशन। सो थैंक यू पीयूष जी एंड एवरीबॉडी। और जब अवार्ड मिलता है कितना मोटिवेट होते हैं, और आज आपको इस कैटेगरी में मिला है वो बता दें। मुझे अवार्ड मिला है वुमेन मोटिवेशन ऑफ द ईयर, मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर। सो आई थिंक जो काम मैं करती हूँ उसी को लेकर, और अच्छा लगता है कि जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो रहा है, लोग समझ रहे हैं और मे बी लाइव्स आर चेंजिंग। सो इट्स गुड। कोविड के समय में काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हो गई है, और जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर है, तो क्या आप हमारे सभी लोग के लिए क्या आप कहना चाहिए सभी को? यही कहना चाहेंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो तैयार रहो बस। लेकिन फेथ जो मैं क्योंकि मोटिवेशन से पहले मैं एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ, तो भगवान पर जिसको भरोसा है वो कभी हार नहीं सकता, वो उम्मीद नहीं हार सकता, वो दुनिया में नहीं हार सकता और ना ही उसे कोई हरा सकता है। थैंक यू सो मच। मित्रा जी, क्या बात है? एजाज भाई साथ में अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हो भाई भाभी। भाई यहाँ पर देखे ना, लुक भाई यहाँ पर देखे ना एजाज भाई। भाई मैं यहाँ पे हूँ। मित्रा जी फोटो में जस्ट भाई सर यहाँ पर भाई यहाँ पर नहीं देख भाई यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड लेफ्ट आइए सर, मैम आइए, वो लोग बार बार करते रहेंगे। आइए
You want to pass? Very good. Hi, congratulations. Thank you so much. ओके आप ओके सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस आप लोगों को, दोनों का अवार्ड जरूर मिलेगा हमेशा की तरह। क्या कहना चाहेंगे, आज नॉमिनेट हुए आप लोग बेस्ट जोड़ी के लिए अवार्ड। हाँ तो कुछ बताइए क्या क्या बताए, तुम लोग बताओ ना, तुमको सब पता रहता है। हमें तो सब तभी उल्टा किया करो, तुम लोग बताया करो अंदर की खबरें, फिर हम लोग बताएंगे, कंफर्म करेंगे। हाँ टीवी पर देखकर पता ही चल जाती होगी। ओके, वैसे आज थोड़ा मूड अपसेट लग रहा है पवित्रा आपका, कुछ खास वजह है? क्योंकि आप हमेशा खिलखिलाती और हंसती अंदर घुसती है, वैसे आज थोड़ा मूड अपसेट सा लग रहा है, कोई खास वजह है? मेरी तरफ मत देखो। नहीं ऐसे ही मैं थोड़ा सा कैसे क्या बोलूँ मैं मुझे कोई और अवार्ड चाहिए था, मुझे कोई और अवार्ड दे रहे हैं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कैसे वैसे ही बुला लिया है। वो बिल्कुल सही बोलती है कभी। ओके, इसके अलावा आप दोनों एज अ कपल अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत फैंस आप दोनों को एज अ कपल पसंद करते हैं। कब आप दोनों ऑन स्क्रीन नजर आने वाले हैं आपके फैंस के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के साथ? अभी आएंगे, आ रहे ऑन स्क्रीन। क्या है वो प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रोजेक्ट होगा यार, जब होगा तो बताएंगे। अभी नहीं बता सकते। दिसंबर में शायद कुछ चीज़ के लिए शूटिंग करना शुरू करेंगे। हाल ही में आपने कोई सॉन्ग शूट किया था, कुछ ऐसी फिल्म सिटी में आपने शूट किया था 15 दिन पहले, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। आपने तू ही बता दे। मेरे को पता चला, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। शूट किया फिल्म सिटी में? मैंने क्या शूट कर लिया? शूट किया था फिल्म सिटी में, कुछ शूट किया था, सॉन्ग के लिए कुछ शूट कर रहे थे आप? नो। Okay, there has been a lot of buzz about you two coming together for a comedy show. कितना सच है इस buzz के बारे में? There are talks going on about. There are talks going on about. Okay, besides that, Big Boss season 15 आ रहा है, किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा excited हैं आप? शो क्या? सबको। पवित्र आज कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं। आज मैं बताती हूँ, मैं सबको देखने के लिए बरकरार हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन क्या क्या गुल खिलाता है बिग बॉस के अंदर, कौन कितना डट के सामना कर पाएगा। एंड इनफैक्ट थीम भी जंगल की है, तो लेट्स सी कि कौन कितना भयंकर जानवर निकलेगा बिग बॉस। कोई फ्रेंड जो बिग बॉस हाउस के अंदर नजर आने वाला है? एजा सर, आपकी जो हाफ जर्नी हुई थी बिग बॉस में, तो क्या वो पूरी हो सकती है? मतलब आधे में आप शूट के मेरे लिए बिग बॉस हो गया है। अभी नहीं है मतलब? और कोई रियलिटी शो नहीं। क्यों? मैं बाहर बहुत खुश हूँ यार। एक्टर हूँ यार, रियलिटी शो स्टार नहीं हूँ। एक्टिंग करते हुए देख लेंगे मुझे। एजाज, आपको पवित्रा मिली है बिग बॉस हाउस के अंदर, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे बिग बॉस हाउस के अंदर जाने वाले लोग? जितना झगड़ा हो सके करो अंदर। तो झगड़ा करने से पवित्रा जैसी एक अच्छी सी पार्टनर मिल जाएगी? जी नहीं, मुझे जो मिलनी थी मिल गई, उनको ट्राई करने दो। हो गया? थैंक यू। बाइक पे बताइए। बाइक पे बताओ। आई थिंक हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है एंड वन फील्स वेरी वेरी ब्लेस्ड जब आपके काम के लिए एक्नॉलेजमेंट मिले। एंड छोटी सरदारनी हैज़ बिन माई बेबी, इट्स बिन माई फर्स्ट शो एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितना नाम, जितनी इज़्ज़त और जितना प्यार मुझे शो से शो के थ्रू मिला है, इट्स जस्ट it feels really good. I feel very blessed and I'm just so glad to receive this. This is for my entire team and for all the fans who have given us so much love. Thank you. आपके आ जाइए ना प्लीज। Rajveer.
पगड़ी की बिना पहचाने वही बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे निमृत के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा so far अब तक? It's been wonderful. It's always good to work with someone who's your age and who's at the same intellectual level. Conversations fun होती है, काम करना उतना ही ज़्यादा fun होता है. So it's been a blessing.